without wasting your further very important amulya time, you people have been eagerly waiting for this kind of session from someone. Maybe you were expecting it to be done by your parents. Maybe you were expecting it to be done by your elders, seniors, or even your friends. But mind well, every one of you have the same situation. Or I would say the similar situation, if not the same one. And what that is? Sir, I am doing CA as well as 12th. Which is the place where I should be focusing more? What are the studies that I'm expected to do more? How should I make my study plan? What time I should be doing what? That's a big question. सर, हम किसी भी तरह का प्लान बनाते हैं तो उसके बाद गड़बड़ ये हो जाती है कि पहला 4 दिन बहुत सिंसियरली फॉलो होता है, सॉरी, पहला 2 दिन बहुत ज्यादा सिंसियरली फॉलो होता है, थर्ड डे पे थोड़ा सा डगमगाता है, फोर्थ डे पे तितर बितर हो जाता है, फिफ्थ डे पे प्लान नाम की चीज खत्म हो जाती है. हाउ डू वी कोप अप विद द थिंग्स? सर, नियत बहुत साफ है कि हमने पढ़ाई करनी है. हमारे घर वाले सुबह शाम हमें कहते हैं कि पढ़ाई करो, हम करने को तैयार हैं. पर दिक्कत ये है, आर्यभट्ट लिंक पे रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो what is happening is you are unnecessarily getting stressed out on a daily basis only on the thoughts and in the guilt. Thought is what? We need to do it. Guilt is what? We are not able to do it. मैं आज 12th की इतनी पढ़ाई करेगा, फाउंडेशन का गिल्ट है. मैं आज फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट खत्म कर देगा, 12th का गिल्ट आता है. एंड you people are getting the dilemmatic situation every day. Friends, I'll tell you one thing. We are in the month of July. I'm going to present in front of you the exact timeline. I'm going to present in front of you that what should be stretched in the initial days and what should be stretched in the latter days. Because for you people, one thing is good that you have got the exam in the month of May. But that thing is bad as well. Why? 15th मार्च के आसपास आपकी 12th की पढ़ाई, 12th की एग्जाम खत्म होगी, बराबर? और 10 मई से लगभग आपका फाउंडेशन का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. That means if you are not a CBSE student, you have got the time gap of only 2 months after your 12th exams. तो एक चीज बहुत ही सिंसियरली मैं आप सबको यहां कह दूं, and that is अगर आप किसी भी तरह के टूर प्लान कर रहे हो, क्योंकि 2 साल से घरों में बैठे हैं, पेरेंट्स का मन है कि हम लोग अब बच्चों की 12th है, 12th खत्म होने के बाद ही जा पाएंगे, तो ये सारी चीजें आप जून के पहले प्लान मत करना. आई एम सिंसियरली एडवाइजिंग यू ऑल, प्लीज सजेस्ट दिस एट योर रिस्पेक्टिव होम्स ऑल्सो, या फिर एट योर रिस्पेक्टिव वो वाले होम्स, whichever. Why I'm saying this is because otherwise you'll be creating the trouble for yourself. या तो तुम जाते जाते रह जाओगे, या तो फिर तुम्हारा फाउंडेशन रह जाएगा.
And I will never suggest any one of you sitting in this particular session, because you have sincerely been coming and attending. 300 लोग आए, मजाक की बात नहीं है. I will sincerely suggest you people, not even a single person of you should come to a thought in the month of October, November, or December, due to the pressure of your parents, due to your own thoughts, due to your peers' pressure, that यार मई की जगह नवंबर में एग्जाम फाउंडेशन का लिखते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे. कंफर्टेबल हो जाओगे फॉर श्योर, पर 6 महीने is an important month, you know, especially when it comes to a career, isn't it? So I don't want any one of you to have that kind of thought. I don't want you to lose out on your 12th studies. Sir, आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो हमसे. Now you people have to behave like the CEO of a top-notch company, who has been given the target that you have to get a growth of 20% year on year as compared to the year 2020. 21 नहीं, क्योंकि 21 के 4 महीने कोरोना में गए थे. ईयर 2020 से तुमको 20% की ग्रोथ लानी है, और whatsoever are the circumstances in front of you, क्योंकि कोरोना के साथ जीना है. Whatsoever are the circumstances, you have to get that 20% का ग्रोथ. तो सीईओ क्या करेगा? वो अपना दिन रात एक करके आगे काम चलाएगा या नहीं? वो सीईओ क्या ये बोलेगा कंपनी में या उनके मैनेजमेंट में या इन्वेस्टर्स को जाके, नहीं भाई वो जो तुम बोल रहे हो ना ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाएगा. व्हाट दिस कंपनी विल, और व्हाट दिस इन्वेस्टर्स, व्हाट द मैनेजमेंट, व्हाट पीपल विल, व्हाट द शेयर होल्डर्स विल से, भाई तू जा ना भाई, तेरा काम नहीं है इधर, तू छोड़ ना, तेरे से नहीं होगा. Do you want to hear the same thing for you people? When it will come to CA Foundation ka studies, at that time, do you want seriously to hear something like this from your parents, from your peers, from your teachers, from your neighbors, from your relatives? मैंने तो पहले relatives तो ऐसे ताक लगा के बैठे हैं तुम लोगों के ऊपर. मैंने तो पहले ही बोला था, इससे 12th नहीं हो पाएगा, तुम फाउंडेशन सीए करो. सीए, that is the kind of thing. Which means what? Now you have to behave like that CEO. And that CEO will not only be achieving the target, but will be getting the incentives also. Will be getting the growth also. My dear friends, I'm not talking philosophically. मैं यहाँ तुम लोग को ऐसा मतलब ऐसे पीछे शेफ्टी में आग लगाने के लिए नहीं आया. वो आग तो लगी हुई रहनी चाहिए. शेफ्टीत आग लागेल ना तेव्हाच रॉकेट उडतो, हे लक्षात ठेवा. जोपर्यंत त्या शेफ्टीला आग लागत नाही ना तोपर्यंत तो बाण वरती जात नाही. ती शेफ्टीला आग लागलेलीच पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही पुढे जाणार नाही. दॅट इज द काइंड ऑफ थिंग. सर ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर. थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं सर. वो सीईओ बनना है, पर वो सीईओ के सामने कुछ तो टारगेट रखा, तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा ना. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था सर. इंप्लीमेंटेशन बताओ सर, करना कैसे है? क्योंकि हमारे लिए दिक्कत क्या है सर, आप लोग ना रोज 4 घंटे हमारे सेशंस लेते हो, बराबर? करेक्ट है? 4 hours पर डे, 1 hour of your 12th standard and 3 hours of your foundation. सर वो कॉलेज वाले हमारी जान खाते हैं सर, रोज 5 घंटे, 4 घंटे, चलो सर 4 घंटे से चलो 5 ही पकड़ो ना. 5 घंटे वो कॉलेज वाले जान खाते हैं, सच में जान खाते हैं सर. 9 तो यही निकल गए. बीच में नहाना धोना घूमना फिरना, इसमें करीब करीब 3 घंटे जाते हैं हमारे, जो हम लोग दिन भर टाइम पास करते हैं व्हाट्सएप और हाँ ना, नहीं हाँ ना. So that's the kind of 3 hours.
उसके बाद चलो 1 घंटा लैंग्वेजेस को भी दिया, 1 घंटा रोज का। 6 + 4 10 + 2 12 hours गॉन सर। हमारे पास बचा क्या, बाबा जी का तुल्लू। यू स्टिल हैव 12 hours रिमेनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, I am 41. You people are having the average age of 16, 17, 16. मैं सुबह 6 बजे काम करना चालू करता हूं। एट व्हाट टाइम? 6 o'clock या 7 बजे। आजकल थोड़ा सा लेट उठता हूं तो 7 बजे। आई गेट अप एट 7, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्टिविटी, उसके बाद लेक्चर, फिर दुकान पे, फिर लेक्चर, फिर दुकान पे, दुकान के कुछ मार्केट के काम। आई स्लीप एट 12:30। थोड़ा सा टाइम पास करता हूं, मेरे पास तो हक है, मैं सीए बन चुका हूं, तुमको बनना बाकी है। 12:30 आई स्लीप। रोज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी वो ईयर एंडिंग हुआ है, अकाउंटिंग करनी है। डेली आफ्टर फिनिशिंग द इवनिंग लेक्चर एट 8 o'clock मैं घर में बैठ के भूगू नहीं करता। आई गो बैक टू द शॉप, अंदर बैठ के दुकान का अकाउंटिंग करता हूँ रोज 2 घंटे कंपल्सरीली। और नहीं तो फिर साइकिलिंग करने जाता हूं, कुछ तो एक्टिविटी होती है। आई एम वर्किंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 18 hours पर डे। वर्किंग, हाँ, मैं वेस्टेज नहीं करता हूं। हाँ, टीवी देखता हूं, वो वेस्टेज है, सही है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट इज हार्डली 2 to 3 hours। मूवी भी मैं पूरी कभी नहीं देखी है, बीच में थोड़ी सी देख लो, चलो काम करते हैं, कुछ तो और एक्टिविटी है। 2 to 3 hours, 15 घंटे फिर भी दिन में काम करता हूँ। एट द एज ऑफ 41 आई एम एबल टू डू इट। यू आर एट द एज ऑफ 17, व्हाई यू पीपल कांट डू इट? कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था कि जीबी सर वो जो रात को 9 से 1 का लेक्चर लेते हैं, दैट इज टू मच मैन, दिस इज नॉट डन। मैं तो सुबह 6 बजे भी लेक्चर लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ। रात को मैंने भी सेशन लिए हुए हैं, रात भर वाला सेशन लिया मैंने, क्वेरी सॉल्विंग सेशन रखा था, whole night. At any point you join in, at any point you leave, you ask your question, go ahead. I'd done that. मैं पूरी रात जागा था, क्वेरी सॉल्व की थी मैंने। I can do it. Why you people can't do it? तो अगर हम ये ऐसा माने कि तुम्हारा वो टाइम पास का समय 2 घंटे 3 घंटे हमने नहाना धोना घूमना फिरना सब कुछ इंक्लूड करके 3 घंटे हमने छोड़ दिए थे, तो भी तुम्हारे पास 5 घंटे पर डे बचते हैं या नहीं? आई एम नॉट आस्किंग दैट दीज 5 hours will be continuous. I'm not telling that these 5 hours will be continuous. I am saying that these 5 hours are available per day. Per day. Sir, सच में अवेलेबल है, हम सच में यूज करना चाहते हैं, पर 2 दिन के बाद नहीं होता है, उसका क्या? उसका भी सॉल्यूशन मैं देगा। मैं तुम्हारे सारे सॉल्यूशन एक साथ लेके आया हूं, राइट? Am I going good? Yes, sir. Yes. थोड़ा ऐसा फील लग रहा है कि हाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं, हमारी औकात है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. क्योंकि अगर तुमको ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज गोइंग टू प्रीची, द पर्सन इज टॉकिंग वेरी बैड, दिस इज नॉट गोइंग टू गो इन आवर फेवर एट ऑल, ये 2 दिन सुनने को बहुत अच्छा लगता है, बट if you'll seriously do this, mind well, my dear friends, mind well, all 322 sitting in this class now, all 322 sitting in this class now will be coming to me in the month of July of 2022. Sir, we have cracked the CA foundation exam. I am not becoming preachy. I am just trying to bring in the facts in front of you. Now, एक तो ये 5 घंटे कैसे निकालने ये तुमको डिसाइड करना है, पर ये 5 घंटे अवेलेबल है, ये बात पक्की है। दिस इज फॉर श्योर। हाउ? मॉर्निंग बैच वाले बंदों की क्या सिचुएशन है? सर सुबह 7 से 11 लेक्चर, उसके बाद में हमारा 4 घंटे का कॉलेज, 4 के बाद फ्री हो,
4 से लेके रात को 11 बजे तक 6 घंटे, नो सॉरी 7 घंटे होते हैं, 7 में से 5 ही देने। मैं 4 के बाद गिन रहा हूं, मतलब मैंने 12 से 1 का एक घंटा मैंने छोड़ दिया। The students who are having the evening batch, their evening batch is from 5 to 9 and they have the morning college of 4 hours, मतलब दिन का समय तुम्हारे पास 7 घंटे अवेलेबल है, उसमें से 5 दिन है, 5 घंटे अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये 5 घंटे अवेलेबल नहीं है। So these 5 hours, whether you are assigning it in the early morning, whether you are assigning it in the late evening, what is your decision? अब एक बात याद रखो, even if you are having the lectures from 7 o'clock in the morning up till 11 in the morning, I would suggest, I personally will suggest, wake up at 5. Don't wake up at 6:55. Wake up at 5 a.m. for whomsoever it is possible. जिनके यहाँ possible नहीं है उनके लिए छोड़ दो बातें, जहां possible है वहां की बात कर रहा हूं मैं। Wake up at 5 o'clock. And if you do the studies from 5:30 to 7, only 5:30 to 7, what and what not, we'll be talking about that. 5:30 to 7, if you are putting one session, इससे फायदा क्या होगा पता है आपको? एक, क्योंकि आप पढ़ाई करके लेक्चर करने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आ जाती है माइंड में। एंड सेकेंड, उस दिन जो भी पढ़ाया जाएगा, यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ, उस दिन जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारी चीजें डायरेक्टली भेजे में जाएगी, भेजे के ऊपर से नहीं जाएगी। दैट्स फॉर श्योर, यू ट्राई इट आउट। So first session I have given you 5:30 to 7 for whomsoever it is possible, otherwise leave it. ये जो बंदा है ये रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएगा, बाकी लोग 12:30 बजे सोएंगे। Second, for the morning batch students who are having the college in the afternoon, once college is over, don't sit for the studies immediately. Take a break for 1 hour and then do the 1.5 hour का session. Don't do the continuous 5 hours का session. Not possible. औकात ही नहीं अपनी। तो अगर 4 बजे तक कॉलेज खत्म होता है तो 5 से 6:30 बजे तक का सेशन लगा दो, 6:30 से 7:30 टाइम पास करो, 7:30 से 8:30 एक और सेशन लगा दो, 1.5 3 और 4 घंटे ऑलरेडी कवर हो चुके। वो अपने आप में चैलेंज होना चाहिए कि जब तक मेरा ये 8:30 बजे तक का सेशन नहीं होगा तब तक मैं खाना खाने नहीं बैठेगा। 8:30 यू हैव फूड रेडी हो जाता है हर घर में, 8 8:30 बजे तक खाना रेडी हो जाता है, ये मुझे पता है, उससे बहुत पहले होता है, बट 8:30 इज द टाइम एट विच टाइम यू कैन हैव द फूड। एंड अगर आपके घर में उससे लेट खाना बनता है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो 10 बजे तक सेशन खत्म करो भाई साहब, एक और सेशन हो जाएगा। 8:30 to 9 have the dinner break. 9:15 to 10:15 you have the last session. उसके बाद करो ना भाई टाइम पास, हो गए 5 घंटे कंप्लीट। उसके बाद टाइम पास ही करो, पढ़ाई बिल्कुल मत करना, बुक को ऐसे टच आउट भी नहीं करना है। और the students who are having the morning का कॉलेज, they can also do 5:30 to 7 का सेशन or not, क्योंकि कोई भी कॉलेज 8 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होता है, 8 से 12 आपका कॉलेज होता है। सो इनफैक्ट आप 5:30 की जगह 6 बजे से करो, 6 से 7:30 पहला सेशन सुबह हो गया। नहीं हर्षा, योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली फाइन, अगर 6 बजे उठे तो दोपहर में नींद आती है, माइंड वेल हर्षा, have a sleep for 1 hour in the afternoon, there is nothing wrong in that, but that sleep should be only of 1 hour, and that will bring the better energy for the rest of the day. 12 o'clock you complete 12 o'clock you complete your college if you are having the college in the morning and you are attending the evening sessions for the CA foundation and 12th. 12 o'clock you finish that particular thing, and 12 to 1 you take a break. 1 to 2:30, 1 to 2 I would say, 1 to 2
have a theory paper on your table. Sir, खाना मत खाना उसके पहले, खाना 2 बजे खाना है. Have lunch at 2 o'clock. 2 to 2:30 you have food. 2:30 to 3:30 you have sleep. 3:30 to 5 you have got the next session or not? Sir, पर 1 घंटा कम हो गया. Did I say to sleep at 9 o'clock in the night? You're supposed to carry over 1 more hour in the night, na? And तुम्हारे पास भी 5 घंटे available है. So no one can tell me that, sir, that 5 hours is not available. And I'm not asking too much. I'm not asking too much. I'm asking what is expected. And I'm seriously saying this. I'm not making any sarcastic remark here. अब करना क्या है? 5 घंटे. अब थोड़ा सा गणित पे आएंगे. ये हो सकता है और ये होगा, वो कैसे, वो भी मैं बताऊंगा. हाँ, what about those who are interested to have the sport activities etc. उनके लिए भैया एक ही ऑप्शन है. Your study time, which is expected to be 5 hours, has to be curtailed down to 3 hours, and then that shortfall of 6 hours has to be compensated on Sundays. Has to be compensated on Sundays. हाँ, रुक वो असाइनमेंट्स पे आता हूं मैं. असाइनमेंट्स पे भी आता हूं. Let me put the screen in front of you. Now, I said 5 hours per day into 6 days. I am not taking 7 days per week. I am taking only 6 days. कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करना जरूरी है क्या? ये तुमको पता है, मुझे नहीं पता. जब फेस टू फेस होते थे तो लोग खुशी से बंक किया करते थे, तो भी सब कुछ मैनेज होता था. अब ऑनलाइन है तो अब कैसे मैनेज करोगे ये तुम डिसाइड करो. तुम कॉलेज अटेंड करते हो या नहीं, irrelevant of that, I would say 5 hours per day into 6 days. That is what you are supposed to do. So it goes to 30 hours per week. Now, if you are having that sports activity, that should be 30 hours per week of 7 days. If you're not having anything of that kind, then 30 hours per week of 6 days. 1 day holiday. Right? As far as your tests, as far as your preparation, regular lectures are concerned, those all will be talking about that seriously. Test के बारे में मेरी चर्चा already चालू है. I'm making a thorough timetable up till December. In fact, not up till December, but for the next 3 months. And you will not be having all tests on Sundays. I'm spreading it out on the weekdays. Right? तो अब करना क्या है? These 30 hours per week up to the month of October. In fact, November, I would say. Up to the month of November. That means I am talking about July के remaining 10 days, August के 31 दिन, September के 30 दिन, October के 31 दिन और November के 30 दिन. So that is 30, 60, 122 plus 10, 132 days. For these 132 days, मैं ना गणित में थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूं, इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूं. 132 days. अच्छा, इसके वीक्स निकालता हूं मैं. नवंबर तक के वीक्स कितने होते हैं? 1, 2, 2 plus 4, 6 plus 4, 10 plus 5, 15 plus 4, 19 weeks we have. 19 weeks. Up to November I'm talking about. If it is 19 weeks, Mr. Varun Gogia, you are very weak in your calculation. मैंने एग्जैक्ट चेक किया है.
If it is 19 weeks into 30 hours, that is 570 hours, right? So I'll not do it on the whole of November, up to November. I am doing it on weekly basis. What you are supposed to do? 60% of your time you should be spending for CA Foundation at this point. And 40% you should be spending on 12th. And I'm serious about this. I'm absolutely serious about this. That means every week you are having 18 hours for your foundation. And every week you'll be having 12 hours for your 12 studies. Correct? As far as foundation is concerned, accounts 6 hours per week. Maths 6 hours per week. Law 2 hours per week. Eco 2 hours per week. आप कहोगे सर 6 12 4 16 ही घंटे हुए. Writing / BCR 2 hours per week. Mandatorily. And when it comes to 12 studies, what you are supposed to do? I'm again telling it on weekly basis. I'm not saying this on daily basis. आपने उस week का target complete करना है. Accounts 4 hours. Maths 4 hours. Eco 2 hours. In fact, 1 hour is sufficient, but 2 hours including writing practice. OCM / SP. जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके पास समय ज्यादा बचता है. 8 + 4 12 done. As far as languages are concerned, I would suggest the languages should get covered within your lectures itself. You should not spend a separate time for that. अब यहाँ 2 hours of economics, 2 hours of OCM थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा आपको, क्योंकि उस वीक में इतना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ. So instead of only doing the studies, you do the assignment completion in this. जो आप deadline तक के complete करते हो ना, जो आप deadline तक के complete करते हो, वो deadline तक complete करने के बजाय यहाँ complete होनी चाहिए. Srishti, the CBSE students can follow the same thing. The only thing is that CBSE students have the elaborated syllabus and therefore they need to put extra 4 hours on Sunday. And mind well, my dear friends, if you do something like this on a weekly basis, I'm not giving you the targets on a daily basis. अब मैंने कहा 1.5 घंटे का 2 सेशंस और 1 घंटे के 2 सेशंस. IT प्रकाश चौधरी, प्लीज डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी व्हेन इट कम्स टू IT. ये क्लास में जितना कवर होता है बस हो गया, बाकी का जब एग्जाम आएगी तब देखेंगे. IT में पूछेंगे क्या बे तुमको? That's a nonsensical subject. Do you know that? वो जितना क्लास में होता है उतना करो बस, उसके अलावा एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं. जब प्रैक्टिकल आएगा तब करके खत्म कर दो उसको. Now one thing that I would suggest, on an average, if you would have observed, whether it is foundation lectures, whether it is 12th lectures, whether it is college lectures, हाँ पता है मेरे को दीक्षा, ये सारी चीजें कंसीडर करके मैंने वो कहा कि क्लास में जितना हो रहा है उतना ही करो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. What I am saying is, as far as, please suggest some things for thode. I don't know. Bhakti, you need to elaborate. What you have written is, I don't know about it. Huh. When I'm talking about your 12 studies, when I'm 12 classes, foundation classes, college lectures, be rest assured friends, पूरे हफ्ते में सारे के सारे lectures होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है. जहां तक मुझे पता है, till the point I am personally concerned, I know there are some emergencies, there are some situations I may not have taken the lecture in previous sessions also. Same ways may have happened with the other faculty as well. Same ways it may have happened
with your college faculty as well. In such kind of situations, friends, what do? Do you know that? You waste that time thoroughly. सुबह 7 का सेशन नहीं है तो उस दिन हम लोग लेट उठते हैं, क्या जरूरत है? On those days, complete the backlogs or not, complete the assignments what you have been talking about. We don't do that because we follow Wakanda forever. सर ऐसे कैसे? ये तो हमारा बोनस टाइम है, ये तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए है. नो, ये भरपाई करने के लिए है, और उस समय पे सच में भरपाई ही होनी चाहिए. एंड देन यू फाइंड आउट, मैंने क्या कहा, तुम लोग सीईओ हो, अब तुमको 20% ऊपर का टारगेट है. अब अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, और अगर टारगेट कंप्लीट हो गया तो इंसेंटिव मिलने वाला है. पर वो सीईओ को जब टारगेट दिया जाता है, वो क्या समय बर्बाद करता है? जब भी मौका मिलता है, मौके पे चौका मारने की ही कोशिश करता है. एंड दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सर हम नन्हे मुन्ने बच्चे सर घर में बैठे, क्यों इतने अत्याचार किए जा रहे हो? मैंने कहा था सीए करने के लिए. मैंने पहले दिन पे तुम लोगों से पूछा था कि तुम लोग को कौन फोर्स से आया, कौन प्रेशर से आया. तुम लोग क्या बोले? नहीं सर हम तो खुद अटेंड कर रहे हैं सर, हमको तो खुद का मन था, मेरा बहुत मन था, मैंने बचपन में सोचा था ये करेगा. दिस इज व्हाट योर रिएक्शंस वेयर. You have decided it yourself or not? And if you have decided it yourself, that means you have to do it now or not? और माइंड वेल, चलो फाउंडेशन में आपने 6 महीने का एक्स्ट्रा बोनस ले भी लिया. सपोज आपने डिसाइड किया अक्टूबर नवंबर, नहीं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो नवंबर में देंगे. चलो मान लो ऐसा भी कर लिया अगर आपने, तो भी when it will come to intermediate, you will be required to come on the same toes or not? Better to get trained earlier for that ना. और दूसरी बात मैं कह दूं, ये तो आजकल की बात है, तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर है, घर बैठे सब कुछ कर रहे हो. जब तुम्हारे फेस टू फेस लेक्चर्स होते थे कॉलेजेस में और लेक्चर्स में, तब झक मार के तुम 4 घंटे के रोज के फेस टू फेस लेक्चर अटेंड करते थे क्लासेस के. झक मार के तुम लोग कॉलेजेस जाया करते थे, भले वहां पे टिंगल किया करते थे, पर जाते थे ना. तब वो 6 + 4 10 घंटे तो तुम ऑक्यूपाई करते थे. वो तो छोड़ दो, तुम जब 10th स्टैंडर्ड में थे 8 घंटे रोज के स्कूल में रहा करते थे, और उसके बाद 2-4 घंटे तुम लोग ट्यूशन पे रहा करते थे, फिर चुपचाप बैठ के पढ़ाई किया करते थे. किया था या नहीं? I am asking for the same things again to you people, man. I am not asking for something which is quite different and not possible for you people. What I am asking is absolutely possible for you people. And you are expected to do that. One last thing, sir, चलो ये सब कुछ मान लिया हमने. This is possible and we'll do this. Sir, हम लोग ये ऐसा फॉलो करेंगे. 30 hours will be surely doing it. मैं सर, पर ये कब तक सर, कैसे होएगा? मैं आज एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूं, अलग से अपना पर्सनल वाला. उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं तुम लोग को भेजेगा. जिसको ज्वाइन करना है वही ज्वाइन करना, जबरदस्ती नहीं है. हर संडे को you have to honesty is the only policy. आज के बाद तुम रोज डेली एट द डे एंड यू विल बी राइटिंग कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, उन जितने भी घंटे तुमने पढ़ाई की उसमें क्या क्या पढ़ाई की. बस इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं. एक अलग से डायरी बनाओ, एक अलग से बुक बनाओ, अलग से पन्ना करो, जो भी. यू हैव टू जस्ट डू दैट, राइट? Who have done their 12th standard. Sejal, for that I'll be taking that separately. For now, the whole of 5 hours per day you have to focus on foundation. The whole of 30 hours per week you have to focus on foundation, right? हाँ, रुको, गेटिंग टायर्ड वगैरह की बात ही मत कर लवीना. यू हैव टू जस्ट गेट अप एंड गो वॉक कम बैक. मैं क्या किया करता था पता है? थ्योरी पेपर्स आई हैव नेवर सैट एट वन प्लेस. थ्योरी पेपर मेरे हाथ में बुक होती थी, मैं चलते फिरते दिन भर पढ़ाई किया करता था, चलते फिरते दिन भर. आई यूज टू रीड इट लाउडली एंड ऑटोमेटिकली मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा. मैं आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोल दे 5 घंटे कंटिन्यूअस लॉ पढ़ना है, आई कैन सिट विद फुल कंसंट्रेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस.
Yes, Ujjwal will talk about that. तो ये हो गई बात आपकी. अरे वो मैं लाउडली पढ़ के मेरा कंसंट्रेशन लेवल थ्योरी पेपर्स में बहुत बढ़ गया है. Now, what I was saying, I'm going to make a Telegram group. You have to make a daily record कि आपने कितना घंटा पढ़ाई किया, उस 5 घंटे में 4 घंटे में तुमने क्या किया. Honesty is the only policy. 4 घंटे किया 4 घंटे, 2 घंटे पढ़ाई किया 2 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई किया 5 घंटे, 8 घंटे किया तो 8 घंटे. You have to write that. At the week end, मतलब next Sunday onwards, ये हमारी प्रोसेस चालू हो जाएगी 25 जुलाई से. You have to report from 25th July onwards only this much. वीक में आपने कितने घंटे पढ़ाई की. दिस वीक आई कंप्लीटेड दीज मेनी आवर्स. अब इस ग्रुप का फायदा क्या होगा पता है? एक तो जब आप वो रिपोर्ट करना चालू करोगे, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, आई एम रिपीटिंग इट. जब आप वो रिपोर्ट करना चालू करोगे तो एक अकाउंटेबिलिटी बनना चालू हो जाती है. अभी अभी जब मैं ओसीएम पढ़ा रहा था तो आई वाज सेइंग अथॉरिटी विद रिस्पांसिबिलिटी हैज टू बी देयर. अब तुम्हारे पास अथॉरिटी आ गई कि 30 घंटे तुमने पढ़ाई करनी है. क्या पढ़ाई करनी है तुम्हारे पास डिसीजन है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी है कि वो 30 घंटे कंप्लीट होने चाहिए. कैसे वो तुम डिसाइड करो. यू हैव टू ओनली रिपोर्ट ऑन दैट ग्रुप ऑन द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 30 आवर्स और व्हाटसोएवर आवर्स यू हैव कंप्लीटेड. इससे फायदा क्या होगा? एक तो अकाउंटेबिलिटी बन गई कि तुमको रिपोर्ट करना है. मनीष तरडेजा पर्सनली देखने वाला है. मनीष तरडेजा पर्सनली देखता है और ध्यान भी देता है, ये सबको पता है. सेकंड, वो पीयर प्रेशर जो बनता है ना, जो अब आज की तारीख में सबसे ज्यादा मिसिंग क्या है तुम लोग की लाइफ में पता है? पीयर प्रेशर. जब हम लोग क्लास में जाया करते थे, जब हम लोग कॉलेज में जाया करते थे तो आपस में बात करते थे, आपस में बताते थे. कोई जताता था, कोई बढ़ाता था, कोई कम करता था, कोई कंजर्वेटिव, कोई एग्रेसिव बताया करते थे, तो पीयर प्रेशर होता था. अब वो पीयर प्रेशर गायब हो चुका है. एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पीयर प्रेशर बैक वर्चुअली. सो today or tomorrow I'll make that Telegram group. I'll put that link on the group. जिसको भी ज्वाइन करना है they can come over, join on Telegram. इसलिए क्योंकि नंबर की लिमिट नहीं होती है. Join that Telegram group and go ahead. Is that point fine for everyone? I hope Yes, what I talked about has worked well for you, and you will surely start working from today onwards, not from tomorrow. Today make the plan, tomorrow implement the plan, and next week onwards start reporting. And I am going to look at it, and I'm going to look at it personally. If you have any kind of feedback, you can give it personally on my WhatsApp, not on this group. Right? Yes, sir. Try नहीं करना है आर्यन, करना है. I will do it. Right? Thank you. Have a great sleep in the night. कल से Thank you, sir. बनना है. Thank you, sir. Thank you. Yes, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Excuse me, sir.